Okay, so hello everyone, this is Akshay, and today we're going to cover this question, lead code 261, a medium category question, graph valid tree. And this has been asked in many good companies, LinkedIn, Google, Amazon, and so on, right? So this question has been also asked as the today's problem of the day on the GFG platform, right? So we'll solve first of all this purity question, and we will once we've understood the problem, why all the approaches, we will just copy paste the solution in a lead code platform as well. And why we are covering the lead code here, because there is an interview preparation sheet which I have made. I have curated of 194 to 200 questions. So we will first cover these questions and then we will continue our GFG period streak. But once अगर कोई ऐसा question match होता है sheet और GFG period में, then definitely we'll cover both at the same time. ठीक है, तो हमें चेक करना है यार कि चेक इफ गिवन ग्राफ इज ए ट्री और नॉट, राइट. हमारे पास n इक्वल्स टू 4, मतलब n इक्वल्स टू 4 एजेस दे रखे हैं विच goes from 0 to n minus 1. That is for n equals to 4, the edges are 0, 1, 2, and 3. M equals to 3 implies that you have given 3 edges for the graphs. तो हमें क्या करना है, हमें बताना है कि ये ग्राफ ट्री है नहीं है. तो ठीक है, तो ट्री होने के कंडीशंस क्या होती है? बेसिकली दो कंडीशन होता है. अगर आपके पास n नोड्स है तो आपके पास n माइनस 1 एजेस होना चाहिए और ग्राफ कनेक्टेड होना चाहिए. एक और कंडीशन होती है इसकी नो साइकिल, राइट. बट अगर आपने ये दोनों कंडीशन इंश्योर कर लिया तो नो साइकिल वाला कंडीशन भी अपने आप इंश्योर हो जाता है. एक ड्राइंग करके देखते हैं यार. So let us quickly do some dry runs. So for this graph, what is mentioned that you have given vertices as a 0, 1, 2, and 3, and 0 is pointed to 1 as an undirected edge, and 1 is pointing to 2, and 2 is then pointing to 3, right? You can clearly see that the n here is given to 4, and the edges here are 1, 2, and 3. So the edges here are 3. So definitely that's a valid graph, and also it's a connected one, correct? Let us look at the second test case. So it is given as 0 is connected to 1 with an undirected edge, and 1 is connected to 2, and then 2 is connected to 0, right? And you have 3 here remaining as a disconnected graph, and definitely you can see it forms a cycle as well, right? So once we have checked these two conditions, n minus 1 edges for n nodes and connected, then definitely we do not have to check for the no cycle condition, right? It will automatically make ensure. तो हमें बस ये चेक करना है यार, n माइनस 1 एजेस होने चाहिए और कनेक्टेड होना चाहिए. कनेक्टेड करने के लिए n माइनस 1 एजेस तो इफ स्टेटमेंट अपना काम हो जाएगा. कनेक्टेड के लिए हम क्या कर सकते हैं यार, या तो आप DFS रन कर लो या तो आप BFS रन कर लो, राइट. कहाँ से रन करोगे? रन फ्रॉम स्टार्टिंग, रन फ्रॉम 0, राइट. और अगर वन गो में अगर सारे नोड्स कवर हो गए तो डेफिनेटली द ग्राफ गिवन इज कनेक्टेड, जस्ट मेंटेन अ काउंटर. तो ये अब DFS और BFS का प्रॉब्लम बन चुका है यार. अगर आपको DFS और BFS आता है तो अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. तो ओके, तो DFS BFS की अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पे अपना ग्राफ प्लेलिस्ट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगी. आप यहाँ पे BFS DFS एडजेसेंसी लिस्ट कैसे बनाते हैं आपको सब कुछ मिल जाएगा वहाँ पे. आप देख लेना और क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना. ठीक है, अब चलते हैं इसके कोडिंग सेक्शन पे. तो ये रही हमारी BFS वाली अप्रोच. सबसे पहले हमने यही चेक किया है कि m इज नॉट इक्वल टू n माइनस 1, देन डेफिनेटली रिटर्न फॉल्स. पहली कंडीशन. दूसरी कंडीशन ये, हमारे पास एक काउंटर रहेगा. हमने एक एडजेसेंसी लिस्ट बनाई है, सारे एजेस को ऐड किया है यहाँ पे, and we have a boolean visited matrix and we have run a simple standard DFS. जब भी हम नेबर को कर रहे हैं प्रोसेस, हम वहाँ पे उस नेबर की काउंट को प्लस प्लस कर देते हैं, लास्ट रेजिंग काउंट इक्वल्स टू एन, देन रिटर्न ट्रू एल्स फॉल्स. ये कोड अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है यार तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ BFS एक बार समझ लो, ये क्वेश्चन तुरंत से हो जाएगा, राइट. क्योंकि BFS की वीडियो बन चुकी है इसलिए मैं यहाँ फिर से नहीं एक्सप्लेन करूँगा यार. लेट अस सी द DFS कोड एज वेल. एक छोटा सा वॉक थ्रू इसका भी देख लेते हैं. तो एज यू कैन सी द BFS कोड हैज बिन सबमिटेड. So let's just comment this BFS code now and run the DFS one. एक छोटा सा वॉक थ्रू. तो फर्स्ट कंडीशन हमने चेक कर लिया, एक बूलियन विजिटर अरे बनाया, एक एडजेसेंसी लिस्ट बनाई, सारे वर्टिसेस को इस पे मैप किया. अब अनडायरेक्टेड ग्राफ है तो अगर u टेंड्स टू v है तो दोनों को मैप करना होगा, u टू v एंड देन v टू u, राइट. सिमिलरली काउंट मेंटेन किया, एक DFS कॉल किया हमने, विजिटेड को ट्रू करते हैं यहाँ पे, सारे नेबर्स के लिए ट्रीट करते हैं. वंस इफ इट इज नॉट विजिटेड then do a count plus plus and call the DFS again for its neighbor, and that is it. Yeah, this would be your DFS code. But what would be the time and space complexity? Same जो DFS और BFS के लिए होती है. O of v plus e as time and O of n as your space complexity because we are using a visited array. वापस से अब लीड कोड के क्वेश्चन पे चलते हैं यार, जो मीडियम कैटेगरी क्वेश्चन है और बहुत जगह पूछा जा सकता है, तो इसलिए यार बेसिक्स पे हमेशा ही फोकस करना चाहिए. तो इसका भी हम एक ड्राई रन देख लेते हैं. तो ये रहा BFS का कोड. द ओनली चेंज here in the GFG and LeetCode platform was given parameters different थे. यहाँ पे 2D array list दे रखा है और यहाँ पर 2D array दे रखा है, करेक्ट. क्रम वही रहे. पहला कंडीशन हमने चेक किया, फिर हमने दूसरा कंडीशन
जो कनेक्टेड उनका चेक करना था, एक बार BFS से चेक कर लिया, फिर दूसरा क्या तरीका था, सिमिलरली फर्स्ट कंडीशन चेक किया और फिर DFS से चेक कर लिया, राइट। एक बार इसका सबमिशन दिखा देता हूँ, देन वी कैन एंड दिस वीडियो। ग्रेट यार, तो हियर गोज आवर सबमिशन एंड वी हैव कवर्ड दिस क्वेश्चन एज वेल। तो सिमिलरली सारे क्वेश्चंस एक बार अपडेट हो जाए मेरी प्लेलिस्ट पे, देन वी कैन डेफिनेटली कंटिन्यू आवर GFG पीरियड लिस्ट। ठीक है, तो तब तक के लिए मिलते हैं कल के पीरियड स्ट्रीक में नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप गोइंग, बाय बाय एंड टेक केयर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चन सोल्यूशन सबको समझ में आ गया, तो डू गिव इट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड सोशल मीडिया लिंक्स रहेंगे फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स, आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हो। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय।